صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں غم نہ کرتا لاتم کا خوف کرنا دریا کا غم نہ کرتا لاتم کا خوف کرنا دریا کا نام پنجتن لکھ کر نام پنجتن لکھ کر ڈال دے سفینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت وائس فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے
ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے پنجتن کے صدقے میں، ہر بلا ٹلتی ہے، پنجتن کے صدقے میں ہر بلا ٹلتی ہے، جو بھی لے لیا مومن، جو بھی لے لیا مومن، نام جو مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، راز وہ بلائیں گے، یہ تو ہے یقین، لیکن راز وہ بلائیں گے، یہ تو ہے یقین، لیکن جانے کون سے سنگ میں، جانے کس مہینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے زمیں میلی نہیں ہوتی گگن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی گگن میلا نہیں ہوتا، بشیر شاہ کے مریدوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوبارہ اوڑتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، اوڑتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی، اوڑتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، یہ زمین و آسمان میں کوئی نہ ہجری ہوا، یہ زمین و آسمان میں کوئی نہ ہجری ہوا، عرش کی قندل پہ بیتی وہ اعلیٰ اوڑھنی، اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی، اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، ظاہر وہ باطن نبی کا اس میں پوشیدہ رہا، ظاہر وہ باطن نبی کا اس میں پوشیدہ رہا، طور کے جلوے لیے تھے طور والی اوڑھنی، اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی، کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی، اوڑھتے حضرت
بشیر شاہ نور والی اوڑھنی قادر قدرت اس میں قادر قدرت اس میں رحمت یہ جان دونوں مل کر اوڑھتے وہ شان والی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی جلوہ کا ظہور کالی کملی میں چھپا جلوہ کا ظہور کالی کملی میں چھپا عرش کرسی پر بچھئی تھی نور والی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی اوڑھنی کے 5 رنگ تھے پنجتن کا تھا لکھا اوڑھنی کے 5 رنگ تھے پنجتن کا تھا لکھا اوڑھتے خیر البشر وہ مہراج والی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی دو جہاں کی سیر کی تھی اس کے سائے میں حضور دو جہاں کی سیر کی تھی اس کے سائے میں حضور جوہر وہ اوڑھتے وہ پیاری پیاری اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی اوڑھنی کالی کالی دونوں عالم سے نرالی اوڑھنی اوڑھتے حضرت بشیر شاہ نور والی چند جو نئے نئے لوگ تھے جن کے ذہنوں میں معراج کا واقعہ سمایا نہیں ہے انہوں نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے ایمان دھو دیا اٹھ کے چلے گئے یہ کیسی بات ہے دیوانے پن کی بات ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کے صحابہ تھے آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا ان کے قریب بیٹھنے والے تھے اور جب یہ معراج کا واقعہ بیان شروع کیا تو چاہنے والے صحابہ اکرام ایسے ان کے بارگاہ سے دور ہو گئے اٹھ کے چلے گئے کہ اسی وقت ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے ہاتھ دھو کے چلے گئے اور صدیق اکبر کی واقعہ لمبا ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے واسطے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ کے صدیق اکبر تشریف لائے اور فرمایا کسی کی بات نہیں مانے صدیق کو صداقت اور صدیق کا نام تب ملا جب سے معراج کی صبح ہوئی تھی معراج کی صبح میں صدیق کا نام ملا صدیق اکبر قریب آئے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کب گئے کس لہجے میں گئے کتنے وجہ سے آئے فرمایا اے میرے صدیق آسمان پہ گیا فرمایا صدقتا یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں میں اللہ کا دیدار کر کے آیا صدقتا یا رسول اللہ میں نماز کا تحفہ لایا صدقتا یا رسول اللہ تمہاری بارگاہ میں آیا صدقتا یا رسول اللہ ہر بات پہ صدیق اکبر قربان جا رہے ہیں کسی بات پہ روکا نہیں ہے اور پوچھا اے میرے صدیق اکبر اتنے صحابہ کرام میں کسی نے میرے معراج کی بات سننے کے بعد اپنا ایمان دھو کے چلا گیا ہے اب بتاؤ تم نے میری بات
तुम्हें कैसे कबूल हो गई? हर बात पे तुमने सद्दक़्ता या रसूलुल्लाह कहा, या रसूलुल्लाह आपने सच फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में परवरदिगार आलम यानी अल्लाह के रसूल के प्यारे आशिक सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह हमने खुदा को नहीं देखा है और किसी वही को नहीं देखा है, जिब्राइल को हमने अपनी आंखों से देखा नहीं या रसूलुल्लाह। खुदा को देखा तो तुम्हें देखने के बाद, खुदा को देखा तो जिब्राइल को तुम्हें देखने के बाद, जिब्राइल को माना तो आपके सदक़े में या रसूलुल्लाह। अगर आप ना आते तो हम खुदा को भी नहीं मानते थे। हमारी ये शान होती, सद्दक़्ता या रसूलुल्लाह। अब अल्लाह के रसूल ने नाम दे दिया, तोहफे में लेके आए थे, नमाज के तोहफे के साथ आया हुआ था। जब इतना कबूल किया तो जिब्राइल अमीन फिर हाजिर हो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की जुबान से तस्दीक, कानों से सुनने के बाद उसे कबूल करने के सदक़े में तुम्हारे अबू बकर को सिद्दीक़ का नाम दे दो। सिद्दीक़ का नाम दे दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर मेराज में तशरीफ ले जाने के बाद, दामन की बात बता रहा हूँ, मेराज में तशरीफ ले गया और वहां से आया तो आए, अय मेरे सिद्दीक़ अकबर, एक मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जुब्बा मुबारक अता फरमाया है, ये मेराज का तोहफा है जो रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाया है, अगर मैं आपको दूं तो क्या करोगे? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अस्हाबिही व रिसालत वल हिकमा व अला आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिम तस्लीमा, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैं आप हजरात के सामने बोल रहा हूँ, ये बोल उस जमाने में जब मैं बैयत नहीं किया था तो मेरी हैसियत ही नहीं थी बोलने की, हैसियत ही नहीं थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इतना था कि ड्यूटी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ाना है, 3000 दो तो यहाँ नमाज, 4000 दे तो दूसरी मस्जिद में नमाज। हमें नमाज की ड्यूटी समझ लिए थे। जब वकील के दामन में बैठे, खिदमत में बैठे, उन्होंने चंद किताबें हमारे हिस्से में दी, जब उसका मुतालिया हुआ, उनका रहमो करम हम पे हुआ, तब समझे इमामत क्या चीज। इमामत कहते किसे हैं, नमाज होती क्या है, आदाब इसके क्या हैं, और 5000 10,000 भी अगर इमामत में लेकर ड्यूटी समझ के अगर उसने वो इमामत कर ली तो खुदा की कसम मरते दम तक वो कामयाब नहीं होगा। अगर वो अहले बैत तमाम इमामों की इख्तिदा करने वाला हो तब उसकी इमामत उसे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। बहरहाल ये सब सदका वकील हिंद का है जो हमें तोहफे में अता फरमाया था। और मेराज में फरमाया सिद्दीक़ अकबर, ये लिबास अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या करोगे? फरमाया, या रसूलुल्लाह, और उनके सिद्दीक़ के लक़ब से बड़ा प्यार हो गया था, मेरे महबूब ने मुझे दिया है। सिद्दीक़ को अबू बकर छोड़ दिए गए और हजरत सिद्दीक़ जब कोई पुकारता तो अल्लाह के रसूल को खड़ा हुआ पा लेते थे। कोई सिद्दीक़ कह के पुकारता तो अपने यार को सामने मौजूद पा लेते थे। और फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, अगर मैं ये लिबास तुम्हें अता कर दूं तो आप क्या करोगे? फरमाया, या रसूलुल्लाह, सारी तुम्हारी उम्मत को, हर अल्लाह के उस बंदे को इसी चादर को पहना के उसे सच्चाई का रास्ता बता दूंगा। क्या कहा? सिद्दीक़ बना दूंगा, जैसे तुमने आप मुझे सिद्दीक़ बनाए हो, सारी दुनिया के आपके उम्मती को मैं सिद्दीक़ का खिताब अता फरमा दूंगा। ऐ सिद्दीक़ अकबर, अब तुम जाओ। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। फरमाया, उमर फारूक, ये चादर अगर मैं आपके हाथ में दे दूं, ये लिबास मुबारक तुम्हारी खिदमत में दे दूं, आप क्या करोगे? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं आपने मुझे उमर का लक़ब दिया है, या रसूलुल्लाह फारूक आज़म हूं और सारी दुनिया में सच्चाई का एक झंडा गाड़ दूंगा, हर इंसान को सच्चाई पे चलने का और सबक अता फरमा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने वो मुबारक चादर हजरत उमर फारूक को भी नहीं दी। सिद्दीक़ अकबर भी चले गए, फारूक आज़म भी चले गए, उस्मान गनी को बुलाया। अरे मेरे उस्मान गनी, तुम मेरी बारगाह में आओ। दौड़ते हुए आए, या रसूलुल्लाह सद्दक़्त या रसूलुल्लाह, फिदा का भी वो मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। फरमाया, या रसूलुल्लाह, गुलाम हाजिर है, आप इरशाद फरमाइए, जान देना है? नहीं सिद्दीक़ है, उस्मान गनी, जान देना नहीं। या रसूलुल्लाह, माल कुर्बान करना है? नहीं है मेरे उमर, मेरे उस्मान, अपना माल भी कुर्बानी नहीं करना। या रसूलुल्लाह, फिर मेरे वास्ते क्या हुक्म है? फरमाया, ये मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में ये तोहफा अता फरमाया है, चादर फरमा रहा है, पैसे नहीं, नोट नहीं है, सोने के सिक्के नहीं बांटे जा रहे हैं,
चादर का एहतराम देखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उस्मान क्या चाहिए? फरमाया या रसूलुल्लाह आपका हुक्म, मेरे सर आंखों पे मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए या रसूलुल्लाह। फरमाया ऐ मेरे उस्मान गनी मेरे खलीफा हो। फरमाया या रसूलुल्लाह बताइए हुक्म हो तो मैं आपकी जान, मेरी अपनी जान अजीज तरी तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दूं या रसूलुल्लाह, या आपके खानदान पे कुर्बान हो जाऊं। फरमाया कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, न माल कुर्बान करो न जान कुर्बान करो, बताओ ये मेराज में मुझे तोहफा मिला है, ये चादर मुबारक मिली है, मैं इसे ओढ़ कर अल्लाह की बारगाह से आया हूं, ये खिरक़े खुदाबंदी है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। अब बताओ ये चादर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? सिद्दीक ने सदाकत का ऐलान किया, उमर ने अदालत का ऐलान किया और उस्मान ने और इरशाद फरमाया तुम बताओ तुम क्या करोगे? फरमाया या रसूलुल्लाह जो आपका उम्मती है अगर आप मुझे आप ये इनायत अता फरमा दें, ये दामन ओढ़ कर आपके तमाम उम्मतियों को सदका व खैरात करने के माल का तरीका बता दूंगा या रसूलुल्लाह। आखिर में अली को बुलाया, चादर उनको भी नसीब नहीं हुई। नबी की नबुव्वत की चादर सिद्दीक अकबर को नहीं मिली, उमर फारूक को नहीं दिया गया, उस्मान गनी को नहीं दिया गया। हालांकि खलीफे अव्वल उस्मान हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे खलीफे उमर फारूक हैं, उनकी अदालत के सामने किसी की अदालत नहीं है। और दुनिया में जो भी कानून चल रहा है, चाहे ईसाइयों में हो चाहे दुनिया के किसी मजहब में चल रहा हो, वो आज भी फारूक आजम ही की ला पे चलता है। आपको खबर है आप जो कॉलेज में डिग्रियां पढ़ रहे हो, हर डिग्री के पीछे अगर आप छान बिछान करते चले जाएंगे तो सारा मामला फारूक आजम के दरबार में चला जाएगा। उस्मान ने फरमाया रसूलुल्लाह हर अपना माल तुम्हारे नाम पे कुर्बान करने का तरीका बता दूंगा। आए उस्मान गनी आप भी जाओ। उस्मान गनी भी चले गए। अब आवाज दी, अपने शेर खुदा को आवाज दी, अली शेर खुदा को आवाज दी, अल्लाह के शेर को आवाज दी। फरमाया है मेरी जान आजा मेरे दरबार में आजा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े और बारगाह नबूवत में अब नबूवत खड़ी हुई है, विलायत सामने खड़ी हुई है, अब मकाम किसी को नहीं मिला जा रहा है। फरमाया है मेरे अली सिद्दीक ने सिद्दीक का खिताब ले लिया है और उनको मैंने चादर नहीं अता फरमाई है, खिताब दे दिया है। अल्लाह ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब दे दिया और उमर फारूक को अदालत का और उनको अदालत का अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफा अता फरमा दिया है। उस्मान गनी को ता क़यामत तक उनके जैसा सखी नहीं पैदा होगा, ऐसे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमा दिया है। ऐ मेरे अली तुम करीब आ जाओ और सारी उम्मत की जान मैं हूं, तुम मेरी जान हो अली, मेरे करीब आ जाओ। ऐ मेरे अली सारी उम्मत की जान कुरान के रोह से और कुरान की तरफ से अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे बंदो, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। उसी नबी ने कहा ऐ मेरे अली तुम करीब आ जाओ, सारी उम्मतियों की जान मैं हूं और मेरी जान तुम हो, अब मेरे करीब आ जाओ। करीब आए गए तो ऐ मेरे अली बताओ सिद्दीक को मैंने ये तोहफा अदा करने के लिए अर्ज की तो उन्होंने सदाकत का हुक्म दे दिया और उमर फारूक को दे दिया तो अदालत का फैसला करने का हुक्म दे दिया। उस्मान गनी को तोहफा अता फरमाया तो उन्होंने माल तकसीम करने का ढंग बताने का, यानी अपना माल अल्लाह के नाम में कुर्बान करने का ढंग बताने का, उसूल बताने का हुक्म दिया। ऐ मेरे अली मैंने ये खिरखा किसी को नहीं अता फरमाया, तुम आ जाओ कुर्बान जाओ। ऐ अली के चाहने वालों, ऐ वकील हिंद के चाहने वालों, उन्हीं के दर से तुम्हें ये हमें मोहब्बत मिली है। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पे कुर्बान जाओ। विलायत एक ऐसी चीज है, अल्लाह के रसूल ने बता दिया नबूवत मिली है अली तुझे, मुझे अगर मुझे नबूवत मिली हो तो मुझे नबी बनाते ही नबूवत नहीं मिली है, विलायत का दामन पहले मुझे दिया गया है, उसी में मुझे नबूवत भी अता हुई है। अब आ तू मेरे आंखों के सामने है, मैं तेरी नजरों के सामने हो। तमाम तीन सहाबा तो चले गए, अब बता अगर मैं ये मेराज वाला तोहफा तुझे पहना दूं या तुझे अता कर दूं तो फरमाया ऐ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाइए मुझे क्या अता फरमाओगे। मैं आज तुझे चादर अता करना चाहता हूँ, चादर तत्हीर अता करना चाहता हूँ, ये चादर फातिमा अता करना चाहता हूँ। अब बताओ जो मेराज में अल्लाह ने मुझे खिरखा दिया है वो खिरखा मैं तुझे देना चाहता हूँ। मेरी नबूवत जब खत्म होगी उसे मैं दूसरे पल्ले में विलायत बना के तुझे देना चाहता हूँ और मेरी नबूवत खत्म होगी
बात लहजों में खत्म हो जाएगी, नबूवत का रुख फेरेगा तो विलायत का शुरू हो जाएगा। अरे अली अब तू मेरे सामने खड़ा हुआ है, अब ये मैं नेमत तुझे देना चाहता हूँ। क्या सिद्दीक अकबर ने जो बात कही थी गलत थी? गलत तो नहीं थी। उमर फारूक ने कहा था बात गलत नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने उनको भी नहीं दिया। और उस्मान गनी ने जो बात कही थी गलत कही थी, नहीं कही थी, तीनों बात बरहक थी, मगर अल्लाह के रसूल ने उन्हें नहीं अता फरमाया। और अली को फरमाया मेरे अली करीब आओ, ये चादर मैं तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिद्दीक अकबर की जैसी सदाकत पेश करोगे? नहीं फरमाया या रसूलुल्लाह नहीं करूंगा। उमर फारूक की अदालत पेश करोगे? नहीं फरमाऊंगा। उस्मान गनी के जैसी दौलत तकसीम करोगे? नहीं या रसूलुल्लाह नहीं तकसीम करूंगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर की सदाकत अली में देखी, उमर फारूक की अदालत अली में थी और उस्मान गनी की दौलत अली में थी। और फरमाया अगर मैं ये तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? फरमाया या रसूलुल्लाह मैं किसी को तकसीम नहीं करूंगा, तुम्हारी गुनहगार उम्मत को इसमें चादर में छुपा लूंगा। कुर्बान जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेराज के दिन की सुबह का वाकया। अब बताओ कि सदाकत अगर हो जाती तो वो सदाकत आज गैरों में भी पाई जाती है, सच्चाई गैरों में भी पाई जाती है, अदालत आज गैरों में पाई जाती है। अदालत करना भी मुसलमानों का हक है, मगर वो चीज अल्लाह ने दूसरों को भी अता फरमाई है। सदाकत भी दी है, सच्चाई उनमें भी मौजूद है। एक चीज मौजूद नहीं थी, जो चीज हजरत अली ने फरमाया रसूलुल्लाह ये चादर अगर आप मुझे दे दें तो इसी चादर में हर उम्मत को लपट लूंगा। ये नहीं फरमाया मुत्तकी को इसमें छुपा लूंगा, हर गुनहगार को इसमें छुपा लूंगा या रसूलुल्लाह। यही चादर क़यामत के दिन फरमाया ऐ मेरे अली शेर खुदा, जो चादर आज मैं तुम्हें अता कर रहा हूं ये चादर मैदान हश्र में शामिया बनी हुई, उसके नीचे जो आ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, बख्शाया हुआ होगा, उसके वास्ते बख्शिश की दुआ भी नहीं की जाएगी। तो याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, जो सबक तुम्हें इस वकील के दरबार से मिला हुआ हो, क्या वो वली नहीं है? वली नहीं है? ऐलान करो भाई, जोर से बोलो, या मैं तो बोल रहा हूँ, लब्बाइक कहो। वली नहीं है? बेशक है। अगर ये ना होता तो ये सबक हमें नहीं मिलता था। अली की शान और उसकी मोहब्बत अगर उसी से बयान होती है जिसके पीरो मुर्शिद ने उसको कुछ तोहफा दिया हो या मुरीद को कुछ बांटा हुआ हो। बोलने वाला बोले और उसके सीने में उतर जाए, उसकी मोहब्बत में जोश पैदा हो जाए। आपने देखा होगा दरगाह की सरजमीन में पहली मर्तबा जिक्र हुआ, हमारे सानिया वकील हिंद भी वहां पे मौजूद थे, बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र हुआ। और हमारी तमन्ना थी उस जगह पे हमारे सिराज भी हर जगह आए थे, मगर वहां नहीं है, अफसोस रहेगा हमारा। या तो ऐसे आशिक का होना बहुत जरूरी था, वो मंजर देखने की दीवानगी उनके अंदर मौजूद थी, मगर वजह क्या थी? ऐसा जिक्र हुआ, पहली मर्तबा जिक्र हुआ, कम से कम गवाह बना के बता रहा हूं, आधी सफ़े नीचे गिर गई। पहले आशिक हैं, पहले बैयत किए हैं। जमाल बीबी मां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारका है, शायद 1500 के करीब मुसलमानों के सुन्नियों के घर हैं। जिक्र हुआ और वक्सानी वकील हिंद वहां पे मौजूद, मजदूर के आने वाले हर खलीफा वहां पे मौजूद था, मगर उन्होंने देख लिया और अपने आंखों से कह दिया, किसी के अंदर लफ्ज़ा तारी हो गया और जिसके अंदर शैतानियत आने वाली थी वो भाग के चली गई, हर कोई बेकरार हो गया। इससे बड़ी दलील क्या होनी चाहिए? ये दामन विलायत है जो अल्लाह तबारक तआला ने वकील हिंद के सदक़े अता फरमाई है। एक बात आखिरी बात तुम्हारे सामने अर्ज कर दूं, फिर अपने खुतबे को खत्म कर दूं। एक मरतबा बुलंद आवाज से फिर एक मरतबा नारे पुकारिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, खाजा का दामन, अली का दामन, वली का दामन, वकील हिंद, वकील हिंद। अब आओ तुम्हारे सामने एक बात ख्वाजा गरीब नवाज को रख देता हूँ, एक ही बात, मौका देंगे तो, नहीं तो बात खत्म हो जाए, बैठ जाएंगे। बस आप आए तब रुखाए फिर घर चले गए, किस्सा खत्म। पहले के वकील अल्लाह अब्दुल्ला शरीफ कादरी अल-तनी बगदादी के हाथ में जब बैत किए थे वकील हिंद, जब हमें बैत किया वहाँ उस वक्त से देख रहे क्या है कि उनके हालात, उनकी सादगी, उनकी मोहब्बत उस वक्त हर मुरीद के वास्ते भी थी और हमारे पहले के वकील के पास भी थी। पहले के वकील के साथ इतनी खिदमत किया उन्होंने, कोई भी मुरीद नहीं कर सकता था।
जैसा उनको आंख में एक ये आ गया था छल्ला, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ मेकरी में, बाद वो बाहर से ट्यूब मंगाए। तो वकील रहीम क्या करते हैं, मेकरी हॉस्पिटल के अंदर एक अलग बेड है, सुबह को ड्यूटी करते हैं, रात को मुर्शद के पास बेड पर बैठ कर उनकी खिदमत करते थे। ऐसी खिदमत है ना, पैसे भी खिदमत करा, पैसे दवाइयों को भी करा, हॉस्पिटल को भी करा और रात तमाम जाग के भी करा। वही सिला है कि उस वकील की खिदमत करने, माँ बाप की खिदमत करने में आज शहंशाह खुतुब हो गए हमारे। वली क्या, वली ने खुतुब, ज़माने के खुतुब। वली की क्या करा पहचान है, वली के दो रूप है तो ना वली। अब यहाँ भी है तो कोई मदद को पकड़े तो कहीं उधर भी 1000 मील या 100 मील उधर भी उन्हें मौजूद होकर उसकी मदद करना, उन्हें वली है। मैं वली का तो वली नहीं हो सकता। नमाज पढ़े तो वली नहीं होता, मोहब्बत आले बैत से वली होता है। पहले मोहब्बत अपने मुर्शद की करो, मुर्शद से कहता हूँ बात मोहब्बत शख्स से होती है, शख्स होता है गौसे पाक, गौसे होता पंडित ने पाक वैसा होती है। पहला हमें वकील की मोहब्बत नहीं कर सके तो शेख की क्या मोहब्बत करेंगे, ख्वाजा की मोहब्बत क्या करेंगे, समझ में आएगा। अब ख्वाजा की कौन, ख्वाजा को यहाँ पे हमारे मुसलमान के गैर कौम उनके दरबार में बहुत ज्यादा तादाद में हाजिर होते हैं, क्या वो ख्वाजा से मोहब्बत करते, ख्वाजा को मानते, मगर ख्वाजा से मोहब्बत इसलिए मोहब्बत करते उनकी दौलत के वास्ते, उनके दौलत मिलेंगे, उनकी सेहत मिलेंगे। मगर हमें मोहब्बत लिल्लाहियत से करे तो मोहब्बत खाई मिलती, तो खुदा भी पसंद करता है, गौस भी पसंद करते हैं, ख्वाजा भी। इसी तरह वकील से हमें मोहब्बत उनकी ना जात से करो, ना उनकी सिफत से करो, ना उनकी करामतों से करो, लिल्लाहियत दिल से इश्क के साथ उनसे मोहब्बत करो तो खुदा भी तुम्हें नजर आ जाएगा। ये मोहब्बत होना, लिल्लाहियत की मोहब्बत। जब खुदा कहता है हमारे से मोहब्बत करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कहने मेरा वकील को मोहब्बत किया है तो उन्होंने भी मोहब्बत करते हैं। यह मोहब्बत ही क्या है, विलायत को ले जाती है। यह मोहब्बत ही तुमने जन्नत का रास्ता दिखाती है। ना तुम्हारी नमाज, ना तुम्हारा जिक्र, ना तुम्हारी वाह, ना तुम्हारा इल्म कुछ नहीं करता, यह मोहब्बत ही है। यह मोहब्बत क्या है, वकील आले बैत की मोहब्बत हमारे सीनों में डाले। वकील हिंद से मोहब्बत करे तो आले बैत से मोहब्बत करे सरकार, आले बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नती हो गया। और वकील की करामत क्या बोली, अब यहाँ पर एक संदोल था, हमारे खलीफा मौजूद थे, रात को यह करे कौन सा संदोल, नूरानी संदोल करा। हमारी भांजी का है, मुरीद आशिक इंदौर के अंदर है, यहाँ रात को संदोल कर रही, सब पूरा संदोल गुलाब कैसा हो रही उन्हें देख कर सुबह को बोली तो हमने उनके हाथ फोन दिया, वही से हम मंजर वहां पर देखी। ये किसकी करामत है, वकील हिंद की। वकील उनसे कभी न बेजार हुई तो हमारी भांजी आको बोलती है डर होगा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। उन्हें कहता हूँ खानका पाई थी, जब फुर्सत मिलती खानका को आती बेंगलुरु के, पर मोहब्बत थी, मोहब्बत से वो मकाम मिलता, वो वकील हिंद साथ रहते हैं। हमें आकर बोले ये करे वो करे, जो मोहब्बत वकील से लिल्लाहियत के साथ बगैर कुछ मतलब क्या, मोहब्बत करे तो मोहब्बत क्या होता है, वहाँ पर हर चीज मौजूद होती है। यहाँ तक कि वकील हिंद क्या है, वकील हिंद के जरिए से हमें खुदा को भी देखना से, रसूलुल्लाह को भी देखना से। मिसाल के तौर पर एक वक्त वकील हिंद को हमें बोले बांध जाते हैं तबियत बरोबर नहीं, फिर भी फोन करे वकील हिंद को, सरकार ऐसा ये फलाफी शेख करना का तो क्या करना जाए, बगदाद की मान जाओ सब, बगदाद की कुदरत मुझे मालूम नहीं, शेख के पास जाने मेरे पास पैसा नहीं, मैं तुम्हारी फलाफी शेख होना तो मैं तुम्हारे में शेख को भी देख लूँ, सो तुम्हारे में रसूलुल्लाह को, तुम्हारे में खुदा को देख लूँ, उससे मैं तुम्हारे में फना होता हूँ बोलता हूँ। ये चीज सनद हमें ले लिया, वकील साहब हयात से रहने कई सनद लेकर हूँ मैं, वकील साहब से फनायत का हिसाब हर चीज लेकर हूँ, ले ले हमें। और वकील हिंद का सदका है कि आज हमें यहाँ पर जमा होकर उनके मौलूद के बारे में बोल रहे हैं। और ये करामतें बहुत थी, करामतें जाहिर करना चाहे, वली की करामत से बड़े कुतुब की बहुत करामतें होती। अब यहाँ पर इन्हें आकर रहने से ये क्या हो गया, मजदूर औलिया थे, अब कुतुब भी आ गई, तो मजदूर और मंड्या डिस्ट्रिक्ट रोशन हो जा रहा है। अब उसके बाद आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों करके बोला तो मुझे शुरू से भी एक मुरीद होना करके बोल को बहुत आस थी, ऐसी आस थी जिसकी हद नहीं। छोटेपन से मैं एक मुरीद बनना, कोई से अच्छा देख को करके बोल को बेंगलुरु घूमिया,
कोलार गया और अम्मा जान बाबा जान का गया, श्रीरंगपट्टनम को गया, कोई भी मेरे साथ क्या भी ऐसा अच्छा दिशा नहीं। एक चीज़ मिले वलीबा, यानी अम्मा जान बाबा जान के करीब में, तब हमारी भान बहुत बीमार थी, जब उनकी करामत जाहिर करी मैं जिंदा परी क्यों करके बोलो था। हमारी भान को जिन्नात का फसाद था, मैं उनसे लग गया था। तब वहाँ हम बहुत से, हमारी भान गई थी, हमारी औरत गई थी और दूसरे भी गए थे। तब है ना जा भी इनको भी शक्कर लेकर उसको भी शक्कर लेकर जाओ करके बोलने से तो करामत की बात बोलूँ सो, दूसरी बात नहीं। उसके बाद मैं मुरीद होने की चीज़ की बात बोलूँ सो, ठीक है बोला तो मैं शुरू से वैसी, मगर उनकी करामत देख कर मुझे मुरीद का ख्याल नहीं आया, मुरीद बन जाना उनका करूँ ख्याल नहीं आया। क्यों करके बोला तो हमारी औरत और हमारी भान, बड़ी भान, हमारी बड़ी भान को बहुत ही जिन्नत का फसाद था। कहाँ की लग गया, कहाँ की मेरी जिंदगी फिर ना होगा, ये मज़ा वो मज़ा, कोसा की आमिल कोसा की कहाँ बहुत गया मैं। ऐसा जा कभी वहाँ मिले उन्होंने, तब है ना शक्कर लग जा को सासर में हमारी औरत और हमारी बहन गए, तो हमारी बहन को शक्कर को दम कर को फूक कर दिए, सर को हाथ रखकर शिफा का रखो दिया, और हमारी औरत को क्या करे वो शक्कर को थूक को दिया। ये करामत की बात बोलूँ सो, दूसरी बात नहीं, थूक को दिया वो शक्कर को। तब भाई ने आको घर में 5 तो ये लिए थे मंडप को, भाड़े को, वो आको हंसी मजाक करी हमारी भान हमारी औरत के साथ। ऐसा किस्सा ऐसा मुझे फूक को दिया, नासिरा को थूक को दिया, थूक को दिया, थूक को दिया। उन्होंने इसको कहा, कम से कम मैं बोलता हूँ वो बस स्टैंड के करीब हमें इसको यहाँ वहाँ से आके ये बात यहाँ चलिए सो, वहाँ से आगे वहाँ से आएगी नहीं कि ये दीवानी तू चंद्रोज की मेहमान है, ऐसा बोले बोली बात, तू चंद्रोज की मेहमान है ना, अभी जीने वाले हैं तो मरीज तो भी उस वक्त धुपकाला होगा और बारिश होगी। तो वो टाइम पर मुझे मुरीद उनका होना, ठीक है तो मैं जिंदगी करामत देखा था उनके, मुझे मुरीद का ख्याल नहीं आया। और कोलार को गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी बात यहाँ श्रीरंगपट्टनम को वहाँ भी नहीं। बाद अचानक हमारा दोस्त है इनायत मुर्शद, उनका भी इंतकाल हुआ। उन्होंने आको बोले मुझे ऐसा किस्सा ऐसा बगदाद शरीफ से आको ही क्या बोलते हैं, घर को जाओ इनायत पहले बुला लगा, जाओ घर को उनको बुला लगा, निकल गए। तब बैयत लिए बहुत सारे लिए, जैसा कि 11 घंटे से रात के 8 तक बहुत से मुरीदा हुए, कम से कम 150 के करीब मुरीदा हुए। वो होते होते ऐसा हुआ जब तब तो हमारा खानखा चालू में आ गया। चालू में आने के बाद उसे 1-2 साल का अरसा हुआ। तब हमारी एक पीर भान क्या बोले तो मुर्शद ऐसा मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाए, ये करामत उनके वकील की करामत जाहिर करें, मुर्शद ऐसा मेरे बच्चे की शादी नहीं हो जाए, उसके वास्ते क्या तो तावीज़ नहीं तो दुआ कर। तब मैं बोला सरकार ऐसे किस्सा ऐसा कहते शादी के वास्ते बराबर। उन्होंने मुझे मुर्शद करके पुकारिस नहीं, खलीफा बोले, शुरू से भी खलीफा, एंड तक भी खलीफा बोले। तो भाई ने क्या को बोलने से खलीफा जरूर दे डाल, तो मगर उन्हें खान को नहीं आती, जिक्र को नहीं आती, शादी होगी बस जिक्र को नहीं आती, ऐसा बोले। 2 साल के करीब में ऐसा बोल को बाद और क्या मैं दे दूँ तावीज़, इंशाल्लाह तुम्हें आते ना आपको दे तुम्हें। तब भाई ना, और उसके बाद क्या करना सरकार का है, उसके बाद उसकी शादी होगी तो दूसरे को तुम्हें दो, दूसरे को तुम्हें दो, उसकी शादी होगी तो दूसरे को तुम्हें दो, ऐसा बोले उन्होंने। क्या बात मुझे समझ में नहीं। तब भाई नहीं हमारे हिंदू सरकार की बात तावीज़ लगाया, उनको दिया, देखो भी रात का खुद ऐसा किस्सा ऐसा कहते हैं तुम्हें ये करो। वो अल्लाह का रस हमारे हिंदू वकील की करामत, वो देते से देते 8 दिन में उसकी निस्बत भी होगी और शादी भी होगी। तब भाई ना वो तावीज़ लगा को दिए, लगा मेरे पास ना दूसरी लड़की, उन्हें भी आई, ऐसा करके 10 शादियाँ हुई एक तावीज़ में। हमारे हिंदू वकील की करामत जाहिर करने से 10 हुए। और 11वें को भी कौन के हमारा साथी नबी मुरीद वो निर्गट टाइम में एक भाई को है, उसके बच्चे की शादी नहीं हो रही, देव करके आज तक वो तारीज ही नहीं लगे सब, कम से कम 15-16 साल की बात बोलूँ सो आज तक नहीं।
वो तावीज़। रही दूसरी बात, हिंद वकील के करामत की बात बोली, दूसरी बात नहीं ज़ाहिर करें क्यों कर को बोला तो ऐसा एक चीज़ दूसरा कौन के है बेमुरीद है, दूसरा को ऐसा मुझे बहुत ही चीज़ मेरी तबीयत खराब हो गई, ऐसा मुझे उठने बैठने नहीं हो रहा है, इसमें है नहीं तुम्हें क्या तो भी तुम्हारा खलीफा का नमन को दो को ऐसी बात जाहिर करो। मैं क्या कर रहा था सो न सीधा बुला ला उस सरकार के पास चल रहा बेंगलोर को, तब उन्होंने देखते से देखते बोला खलीफा कई को बुला ला कैसा, ऐसा बोला खलीफा कई को बुला ला कैसा, उसकी नीयत ही अच्छी नहीं है, ऐसा बोला। तब है ना हम अपनी कंबर में डोरी थी तागे की डोरी जो होकर को बोलते हमको भी उससे दिया सा कम अज कम मैं बोलूँ सक 15 साल की बात होंगे, आज तक अब से कंबर का दर्द नहीं है, ऐसी चीज आज तक उससे कंबर का दर्द नहीं है। और रही तीसरी बात भी, और एक बात, मैं अचानक बीमार हो गया, बीमार होकर अस्पताल को चले जय देवा को एडमिट हो गया, तब भाई ना सब हमारे घर में फोन भी यहाँ से सर की करो बोला तो फोन भी रख दिया था, तब हमारे रिश्तेदार कुछ हमारे भाना कुछ नहीं मालूम, हम आए अस्पताल लोग जय देवा को। तब भाई ने उसके बाद है नहीं क्यों नहीं चेक करेगी क्या है, 3 दिन बाद आके सीधा अस्पताल को हबीब खलीफे और सरदार और क्या फयास उन्होंने सब मिलकर चाह रहे क्यों है खलीफा गए, उठको बैठता था पलंग पर, नहीं लेट हो गए, हमको भी उठको नहीं लेट जाओ खलीफा गए, लेट गया। तब खड़ो कहो कर को अल्लाह है कर को इसी बात बोले बात है नहीं। और तीसरी बात, तीसरा रोजा है कि नहीं कि खलीफा जी तुम्हें यहाँ मरने से बेहतर है जाओ घर में मर जाओ, उनकी कलामत जाहिर करने से दूसरी बात नहीं। मेरी जोड़ में 5 उस रोज एडमिट हुई सर, पहले 4-5 मैं गई हूँ सर, वो 4 जने भी 4 रोज के अंदर चले गए मन को। मैं है ना उनकी बात सुनको ये कर को, और डॉक्टर को उन्होंने क्या बोले कि क्या है कि अल्लाह को मालूम, वकील रहीम को मालूम, वो डॉक्टर को क्या कर तो दूसरे रोज मुझे डिस्चार्ज कर को पूरी दवाइयाँ लिखो, तुम्हें मरे तक अभी खाता रहना है। आज तक उनका सदका में जीरो 60% में आज तक जीरो, ऐसी चीज उनकी करामत की उनकी करामत की जाहिर करें ऐसी चीज। यही दूसरी बात वो चीज बीमार नवाज और वकील हिंद के दरबार में सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हेलो शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। मुबारक हो सबको वकील हिंद की मौलूद। और ख़ास बात यह है कि आज हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मौलूद के साथ, क्योंकि ये बुज़ुर्गान दीन का शेवा, क्योंकि लोगों को बड़ा फ़र्क क्योंकि यहाँ के दरमदूर के लोग हैं, बड़े वो विलायत के दर्जे से ऊपर के दर्जे को चले गए, क्योंकि उनको सबूत दलील और ये समझती कि यहाँ कैसा किस्सा क्या तभी पैसे दिए तो इन्हों पीर बनाती, ख़त्म कर डाले तो चोर बनाती, ये धंधा चलता है। ये वो ज़माने अज़ल से चलने का राज, दिए क्या तभी ले दिए तो तुम ना वाह गिरी, क्या तभी तुम्हारे से रोक लिए, तुम्हारे पोजीशन तुम्हारे कुर्सियाँ तुम्हारा दौलत तुम ना रोक लिए तो तुम्हें क्या चोर बना। ये ऐसा चलता है। कभी भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस झाड़ के ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर आकर समर को क्या बोलते हैं, फल लग जाती हैं, तो लोग क्या करती हैं, नीचे से उठा को पत्थरे उसे मारते सो। जिस पेड़ के ऊपर समर लगती है उसके ऊपर ही पत्थरे ज्यादा, कई को वो फल नीचे गिरेगा खाएंगे अगर को। जब ऐसा जो सिलसिला जब बढ़ जाता है, तरीक़ा बढ़ जाता है, मुरीद बढ़ जाती है, तरीक़े के अंदर मोहब्बत अहले बैत बढ़ती है, मोहब्बत ख्वाजा बढ़ जाती है, तो क्या करती हैं, उसके ऊपर ताना फसाद कर को क्या करती हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये कोई ऐसी नई बात नहीं कि बड़े बड़े वली सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ कहते हैं, माज़अल्लाह जादूगर कहते हैं,
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक कहते, माज़अल्लाह ऐसी बातें करते, मौला अली को क्या भी कम नहीं बोले, इमाम हसन हुसैन को क्या भी कम नहीं बोले, गौसे पाक को उधर शिया बोलते, हर लक़ब से उनको सब बदनाम करते। ये बदनाम होना भी एक विलायत की निशानी, क्योंकि जिसका नाम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बदनाम होना भी निशानी, क्योंकि नाम जिसका रहता बदनाम वो होता। अब बदनाम आदमियों को बदनाम क्या करें, उनका नाम ही नहीं, पहचान ही नहीं, उन्हें बदनाम क्या करें। और अल्लाह का करम है, जिसका नाम होना चाहता है अल्लाह तो इज्जुमन